So Maharshi Kannada has given this smallest particle. Okay, Kosa has smallest particle. So he said that the Parmanu, okay, Parmanu concept. Okay, concept of Parmanu, which was given by the Maharshi Kannada. Maharshi Kannada, इंडियन फिलोसोफर ने तो उन्होंने बताया कि ये जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, ओके, सो get smallest particle, okay, smallest particle beyond which further division will not be possible, okay, that name he has given Maharshi Kannada was Parmanu, okay. और भी बहुत सारे फिलोसोफर आए, ओके, उसके बाद एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर, ओके, नाम सुना होगा आप लोगों ने इसका, डेमोक्रिटस, ओके, डेमोक्रिटस सजेस्टेड दैट वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर, ओके, मैटर को क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड करते जाएंगे, इसको मैटर, go on dividing the matter. Dividing matter. This was a concept given by Democritus. 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 Democritus ने कंसेप्ट दिया था कि if we go on dividing matter, उसका जो smallest particle है, okay, which is indivisible, okay, which is indivisible, smallest particle, okay, very smallest particle, which is indivisible. Indivisible यानी उसको divide नहीं कर सकते, indivisible, very smallest particle, indivisible, and he has given the name that name is what? Atom. Okay. So Democritus was the scientist, okay, who had invented a very smallest particle of matter. सबसे छोटा जो particle है matter का, वो क्या है? Atom है. Okay, ये किसने बताया था? Democritus ने बताया था. Okay. So all this was based on the philosophical consideration and not much experimental work. ज़्यादा experimental work नहीं किया था उन्होंने. He has just given, okay, कि ये एटम एक बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, उसको उसने नाम दिया कि एटम है, ओके. नाउ देयर वर मेनी साइंटिस्ट, ओके, एंड ही हैज गिवन द लॉ ऑफ by the end of 18th century, scientists recognize a difference between elements and compounds, okay. So difference between elements and compound, yesterday we have seen elements, okay, elements and compound में difference क्या है वो उनको बाद में फिर समझ में आया, okay. So what is element? What is element? एलिमेंट क्या है, एक सपोज मान लो कॉपर है, ओके, कॉपर, हाइड्रोजन, ओके, ये क्या है, ये एलिमेंट है, ये क्या है, एलिमेंट है. कंपाउंड, कंपाउंड कब बोलते हैं हम लोग, ओके, दे इट कंसिस्ट ऑफ मोर देन टू एलिमेंट्स. जब वहां पे आते हैं, कंसीडर करो वाटर को, ओके, वाटर व्हिच इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट आल्सो, ओके, एज वेल एज ऑक्सीजन एलिमेंट आल्सो. ये हाइड्रोजन के टू एटम्स और ऑक्सीजन का एक एटम, ओके, मिलके क्या बनता है, एक कंपाउंड बनता है. दैट कंपाउंड इज कॉल्ड एज द वाटर, ओके. तो एग्जांपल है, ओके, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट दिस कि एलिमेंट क्या है और कंपाउंड क्या है, ये ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है. माय वॉइस इज ऑडिबल? So Anthony Lavoisier, he has given two concepts, okay, two laws he has given. So what were this? You see, Anthony Lavoisier, he has given two laws, two important laws, very important laws. Okay, two laws he has given. Okay, so out of which the very first one is law of chemical combination. Okay, laws of chemical combination. Laws of chemical combination. What is that? Let me see. Laws of chemical combination. Okay. So laws of chemical combination. So the following two laws of chemical combination were established. Okay. So laws of chemical combination, in which the first is a law of conservation of mass. Okay. जो दो लॉ ये उसके ये नाम है, ओके, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. तो उसमें फर्स्ट वन इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ओके, लॉ ऑफ conservation, law of conservation of mass. Okay.
इंपॉर्टेंट है. ओके, बेस्ड ऑन दिस you will be finding out various equations. Okay, हायर एजुकेशन में जाके इसके बेसिस पे आप लोग बहुत सारी इक्वेशन डिराइव करोगे. ओके, so law of conservation of mass, as the name suggests, conservation of mass. किसी भी चीज का कंजर्वेशन क्या होता है? ओके, that property it remains. That property it remains means वो खत्म नहीं होता. ओके, तो what is the law of conservation of mass? He has given एंटोनी लैवॉइजर कि मास ना तो क्रिएट होता है ना तो खत्म होता है. That mass cannot be created, nor it can be destroyed. It simply transform from one form to the another form. यानी इसका मीनिंग क्या है? मास क्रिएट नहीं होता. जैसे मान लो ये वाला चौक है, कंसीडर दिस द चौक. राइट नाउ दिस चौक इज मेड अप ऑफ चौक पाउडर. बराबर है. अभी चौक पाउडर है वो किससे बना है? कुछ ना कुछ एलिमेंट रहेगा, लाइम से बना हुआ है. ओके, लाइम से बना हुआ है ये वाला. सो क्या है? ये चौक पाउडर बन गया है. ओके, चौक पाउडर से ये चौक बन गया है. उसका कुछ ना कुछ मास होगा. बराबर है. अगर मान लो मैं इसको ब्रेक करता हूँ, इस चौक को मैं ब्रेक करता हूँ बहुत सारे पार्टिकल्स में. ओके, और उनको मेजर करता हूँ और इस चौक को अभी मेजर करता हूँ, तो दोनों के मास में डिफरेंस आएगा या सेम ही रहेगा? वो सेम ही रहेगा. बराबर है. तो आइदर यू स्प्लिट दिस मास इनटू कितने भी पार्टिकल उसको स्प्लिट अप करो. ओके, मास क्या रहेगा? उतना ही रहेगा. सो मास इज द क्वांटिटी विच नाइदर क्रिएटेड, इट इज नॉट डिस्ट्रॉयड. वो सिंपली क्या हो जाती है? ट्रांसफॉर्म होती जाती है. बराबर है. वन फॉर्म टू दी अनदर फॉर्म इट इज. So we'll see what he has given. Okay, so is there a change in mass when a chemical change or chemical reaction takes place? क्वेश्चन पूछा गया है कि जब केमिकल रिएक्शन होती है, ओके, हम लोग बोलते हैं दिस, सपोज एनी टू रिएक्टेंट्स आर देयर एंड इट इज फॉर्मिंग वन प्रोडक्ट, तो उसमें क्या मास चेंज होता है? ओके, सो दैट आंसर वी विल फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी. मास चेंज होता है या नहीं होता है वो देखेंगे हम लोग. हमें पता है मास चेंज नहीं होता है. ओके, so look at the activity number 3.1. okay, all of you look at the activity number 3.1. देखो क्या लिखा है वहाँ पे? take one of the following sets x and y of chemical. okay, तो देखो फर्स्ट इसमें क्या दिया हुआ है? कॉपर सल्फेट. कितना ग्राम दिया हुआ है? 1.25 ग्राम. देन सोडियम कार्बोनेट कितना दिया हुआ है? 1.43 ग्राम. सो इन दिस वे दे हैव गिवन लिस्ट. ओके, एक्स साइड में, ओके, एक्स सेट में एक लिस्ट दी हुई है, वाई सेट में एक लिस्ट दी हुई है. ओके, और उन्होंने बोला है प्रिपेयर सेपरेटली अ 5% सॉल्यूशन ऑफ एनी वन पेयर ऑफ सब्सटेंसेस. ओके, तो ये जो पेयर दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को, कॉपर सल्फेट और सोडियम कार्बोनेट, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट, लीड नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड. तो हमें क्या करना है? 5% ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एनी वन पेयर. हमें क्या करना है? कोई भी एक पेयर लेना है. ओके, एक्स वाई. ओके, तो उसका क्या करना है? हमें 5% उसका सॉल्यूशन बनाना है. 5% ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एनी वन पेयर ऑफ सब्सटेंस. Okay, so look at the activity number 3.1. We have to prepare 5% solution of any one pair of substances listed under X and Y, each in 10 ml in water. Okay, then take a little amount of solution Y in a conical flask. Okay, दिख रहा है आप लोगों को conical flask? तो conical flask में क्या किया है उन्होंने? This is the supposed conical flask. सपोज दिस इज द कोनिकल फ्लास्क. इस कोनिकल फ्लास्क में उन्होंने क्या लिया है? सॉल्यूशन ऑफ y. सॉल्यूशन ऑफ y दे हैव टेकन. सो सपोज दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ y. So they have taken solution of y. Okay, solution of y in this conical flask. Okay, in a conical flask, and some solution of x in ignition tube. Okay, ignition tube यानी एक ट्यूब है जिसमें कुछ सॉल्यूशन है. ये ट्यूब है, इसमें डिफरेंट है. कौन सा सॉल्यूशन है इसमें? सॉल्यूशन किसका है? सॉल्यूशन ऑफ एक्स. ओके, तो देखो हमने क्या किया हुआ है? सेट लिया हुआ है. एक्स का कुछ तो भी मास होगा, वाई का कुछ तो भी मास होगा. ओके, सो कोनिकल फ्लास्क में जो लिया है वो सॉल्यूशन ऑफ वाई है, और जो ग्लास ट्यूब में जो लिया हुआ है, ओके, और वी कैन से इग्निशन ट्यूब में जो लिया हुआ है वो क्या है? सॉल्यूशन ऑफ एक्स है. Okay, now hang the ignition tube in the flask carefully.
सी दैट द सॉल्यूशन डू नॉट गेट मिक्स्ड, वो मिक्स नहीं होना चाहिए, उसको आपको ऐसे रखना है. ओके, solution Y is to be kept in this glass tube or emission tube in such way that it should not mix with the solution Y. आप देख सकते हो कि यहाँ पे it will not mix. Okay, so it will not mix. We have to keep these two solutions separately. इन दोनों solutions को हमें क्या करना है, separately रखना है. Put a cork on a flask. So you have to put the cork on a flask. Okay, उसको इस flask को क्या करना है, cork सील कर लेना है with the help of the cork. Okay, ऐसे cork लगा दिया आपने यहाँ पे. So this is the cork. This is the cork. And this is the conical flask. आप देख सकते हो, this is conical flask. And this is ignition tube नाम दिया है. Simply it is just like a tube. Ignition tube. Glass tube बोल सकते हो. Okay, ignition tube. Now weigh the flask with its content carefully. उनको मेजर करो. ओके, फ्लास्क की जो कंटेंट है, सॉल्यूशन है, उसको आप मेजर करो. नाउ टिल्ट एंड swirl the flask so that solution X and Y get mixed. ओके, तो क्या करना है हमें, इसका जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन Y को जो सेपरेटली मेजर करना है. ओके, और सॉल्यूशन X को सेपरेटली मेजर करना है. उसके बाद क्या करना है, ये जो सॉल्यूशन X है उसको मिक्स कर देना है किसमें, सॉल्यूशन Y में. एंड नाउ उसको वेट करना है. व्हाट हैपेंस इफ द रिएक्शन flask, okay, reaction takes place in the flask. Do you think that a chemical reaction has taken place? What should we put a Why should we put a cork on the mouth of the flask? Does the mass of the flask and its contents changes? So the answers of this question, okay, इनके question बता दो. So this solution X can react with solution Y, no doubt. Okay, reaction करेगा, different compounds हैं, different elements हैं, so definitely there will be a reaction between these two. Okay, reaction होगी. अगर मान लो अगर हम लोग फर्स्ट अगर कंसिडर करते हैं कॉपर सल्फेट एंड दी सोडियम कार्बोनेट. ओके, सो दे विल रिएक्ट. कॉपर सल्फेट विल डिस्प्लेस द सोडियम फ्रॉम इट्स कार्बोनेट एंड CO2 गैस विल रिलीज. तो ये कॉर्क क्यों लगाया है हम लोगों ने, बताओ, ये कॉर्क क्यों लगाया है, सो दैट द गैसेस शुड नॉट एस्केप. गैसेस शुड नॉट एस्केप. Gases should not get escape. That's why we are utilizing a cork. यहाँ पे cork नहीं लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, some gases will liberate ना after reaction. Okay, जैसे ये पहला वाला है कॉपर सल्फेट और सोडियम कार्बोनेट में कार्बोनेट कंपाउंड है, कार्बोनेट कंपाउंड है, सो इट विल लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड गैस. तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट हो गया, उसका मास चला गया ना, तो वो मास नहीं जाना चाहिए. इसके लिए सिस्टम को क्या कर दिया हमने, कॉर्क लगा दिया है. ओके, क्या कर दिया है, क्लोज कर दिया है. सिस्टम को हमने क्या कर दिया है, क्लोज कर दिया, ताकि कुछ इससे बाहर ना जाए मास, इसमें कुछ बाहर से मास भी ना इंट्रोड्यूस हो. ओके, सो दैट्स द रीजन दे हैव यूज्ड अ कॉर्क. नो क्वेश्चंस जो उन्होंने पूछे, ओके, कि मास क्या रहेगा, तो आंसर इज बिफोर mixing the solution of X and solution of Y in between each other, their masses, okay, जो रहेंगे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, mass of solution X, बराबर है, मेजर कर लिया जो भी होगा, जितना भी ग्राम होगा, जितना भी ग्राम, जितना केजी होगा, प्लस mass of मास ऑफ सॉल्यूशन Y ग्राम में. ओके, वो उतना ही रहेगा आफ्टर रिएक्शन. दैट विल रिमेन कांस्टेंट. कांस्टेंट यानी सेम रहेगा. दैट विल रिमेन कांस्टेंट. दैट विल रिमेन सेम आफ्टर रिएक्शन आल्सो. आफ्टर रिएक्शन, ओके, क्या हो जाएगा, मास उनका ऐड कर दो, मास ऑफ X, ओके, mass of solution X, okay, plus mass of solution Y. Mass of solution Y वो उतना ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा. Okay, so this quantity, okay, from this experiment
one can easily understand that this is the quantity mass. Okay, law of conservation of mass. It is called as the law of conservation of mass. Okay, मास कहीं पे नहीं जा रहा है. ओके, ये क्या है? अगर हम लोग एक सिस्टम में बात करें, एक क्लोज सिस्टम की बात करें, तो मास क्या होगा? वो वही के वहीं पे रहेगा. ओके, चाहे वो उसमें रिएक्शन हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मास विल रिमेन कंजर्व्ड. इसीलिए लॉ दिया हुआ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज ओके सोडियम एंड क्लोराइड. ओके, सपोज सोडियम एंड क्लोराइड. सोडियम ओके, कुछ मास होगा सोडियम का m1. ओके, अगर उसने रिएक्ट किया किसके साथ? क्लोरीन के साथ. सपोज क्लोरीन का मास m2 है, तो जो कंपाउंड जो फॉर्म हो रहा है NaCl, इसका मास क्या रहेगा? m1 प्लस m2 ही रहेगा. ओके, इसका मास क्या रहेगा? m2 ही रहेगा. इसका मीनिंग क्या है? इनिशियल मास कितना था? m1 प्लस m2 मास था रिएक्टेंट का. और जो प्रोडक्ट जो मिला है हमें, ओके प्रोडक्ट जो मिला है, उसका भी मास क्या है? m1 प्लस m2. सेम ही है, वो कहीं पे नहीं गया. ओके, so in this way we have verified that the mass will remain constant. Does the mass of flask and its content change? No, it will not change. Okay, why should we put a cork on the mouth of the flask? So that the gases should not escape. gases बाहर चले जाएंगे इसमें से जो भी, तो उसका मास कम हो जाएगा. फाइनली जो मास निकालेंगे हम लोग, उसमें मास कम दिखाई देगा. समझ में आया आप लोगों को? so have you understood what is this law of conservation of mass? Okay, so mass can not be created, it cannot be destroyed, it simply transfer from one form to another form. देखो पहले किस फॉर्म में था मास, बाद में किस फॉर्म में चेंज हो गया. ओके, सो वो वही रहेगा. ओके, वो चेंज नहीं होगा. सो दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. समझ में आया? हैव यू अंडरस्टूड दिस? This is the atomic mass of hydrogen is 1, atomic mass of oxygen is 16. कितने एटम हैं उसके बेसिस पे हम लोग निकालते हैं. ओके, दूसरा एग्जांपल अगर हम लोग लेते हैं, सपोज इसका अमोनिया का. ओके, NH3 का. ओके, अमोनिया का फॉर्मूला क्या है? अमोनिया का NH3. ओके, अमोनिया फॉर्मूला इज NH. नाइट्रोजन के वन एटम है. ओके, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द रेशियो ऑफ दैट इज 14:3. ओके, सो नाइट्रोजन प्रपोर्शन में अगर लेते हैं हम लोग, प्रपोर्शन प्रपोर्शन लेते हैं नाइट्रोजन, नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन. अभी हमें पता है हाइड्रोजन का 3 एटम्स है, कितना हो जाएगा वो? ओके, एटॉमिक मास टोटल कितना हो जाएगा उसका? एक आइटम का 1 है. ओके, मल्टीप्लाई बाय, मैं लिखता हूँ 1 into 3. ओके, और नाइट्रोजन के, नाइट्रोजन का कितना है? 1 ही है. तो 1 ही, एक का कितना है नाइट्रोजन का? 14. एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इज 14. तो ये क्या आया रेशियो? 14:3. ओके, सो 14:3. सो ये जो है प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन फॉर प्रोपोर्शन proportion for nitrogen and hydrogen in ammonia. ओके, अमोनिया में ये क्या रहेगा? ये 14:3 के प्रोपोर्शन में ही रहेगा. बराबर है? ये क्या रहेगा? 14:3 के प्रोपोर्शन में ही रहेगा. सो फॉर द डिफरेंट कंपाउंड्स यू कैन कैलकुलेट बेस्ड ऑन इट्स एटॉमिक मास. एटॉमिक मास के हिसाब से आप लोग क्या निकाल सकते हो? उनका प्रोपोर्शन निकाल सकते हो. उनके जो एटम्स हैं, ओके, उनके बीच में प्रोपोर्शन निकाल सकते हो. सो दिस इज कॉल्ड एज द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. इसको क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. सो इन केमिकल सब्सटेंस the elements are always present in definite proportions by mass. Okay, in a chemical substance they will remain in a constant proportion. Okay, कोई भी अगर chemical substance है, so in chemical substance the mass of these elements it will be in the proportion. Likewise we have seen in case of, अभी देखा हम लोगों ने water में, देखो. Okay, water में H2 में it will be in proportion hydrogen to the oxygen. जो मास है वो प्रोपोर्शन में होगा 1:8. ओके, मास फॉर अमोनियम दैट इज
नाइट्रोजन टू हाइड्रोजन जो प्रोपोर्शन है वो 14:3 में रहेगा. दिस इज कॉल्ड एज दी लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. समझ में आया आप लोगों को व्हाट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन? ऐसे आप डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए कंपाउंड्स के लिए आप फाइंड आउट कर सकते हो. ओके, अंडरस्टूड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस.